Hello student, today I am going to teach you painting chapter number 4, Folk Art of India. India has inherited a pre-Aryan culture which is reflected in the folk art. Different religion, sect and beliefs have coexisted throughout Indian traditional life. Cults like Tantras, Shakti, Vaishnav, Buddhists are very important in the life of folk artists. The rural societies needs for art and craft object and supplied by the local artists and craftsmen, which are mainly of three types: wise, ritualistic, utilitarian and individualistic. भारत की लोक कला में आर्यों से पूर्व की संस्कृति की छाप दिखाई देती है। समस्त भारत के पारंपरिक जीवन में विभिन्न धर्म, संप्रदाय तथा विश्वास साथ साथ पनपे हैं। तंत्र, शक्ति, वैष्णव तथा बौद्ध जैसे संप्रदाय लोक कलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण है। ग्रामीण समाज की कला तथा शिल्प कौशल्य की वस्तुओं की आवश्यकता स्थानीय कलाकारों तथा शिल्पकारों द्वारा पूरी होती है। ये आवश्यकताएं मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: कर्मकांडी अथवा अनुष्ठानिक और उपयोगिता और व्यक्तिगत। There are many kind of ritualistic folk art like pata, chitra, pinchwai, alfana, kolam, etc. Decorative wood carving, embroidery, basket work, earthenware, etc. are among the typical utilitarian folk art. These are made by rural artists without any formal training, and most of these designs are repeated by generation after generations. For example, there are hardly any change in the motif of terracotta toys. Those were also made in Haryana 5000 years before. Some folk artists attempt to experiment with new forms from time to time and create an individualistic type of folk art. These artists develop a new style within the old format. These innovations are to be found in the motif of Madhubani painting, Kanthak design and कालीघाट पता चित्रा। जो कर्मकांडी लोक कला भी कई प्रकार की हैं, जैसे कि पटचित्र, पिच आई, अल्पना तथा कोलम आदि, और लकड़ी पर सजावटी खुदाई, सुई डोरे की कढ़ाई और डालिया जो डलिया बनाते हैं तथा मिट्टी के बर्तन बनाना आदि मूल्य रूप से उपयोगितावादी वस्तु लोक कथाएं हैं या लोक कलाएं हैं। ये जो काम है किसी औपचारिक प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के बिना ग्रामीण कलाकारों द्वारा किया जाता है, और ये कला पीढ़ी से पीढ़ी दोहराई जाती है। उदाहरण के तौर पर जो है पक्की मिट्टी से बने खिलौने की जो परिकल्पना में मुश्किल से कई परिवर्तन आया है। 5000 वर्ष पूर्व भी हड़प्पा संस्कृति के दौरान इसी प्रकार के खिलौने बनते थे। वैसे कुछ लोक कलाकार समय समय पर कुछ व्यक्तिगत तौर पर नए स्वरूप देने का प्रयोग करते रहते हैं, जिससे नई लोक कला का सृजन होता है। ये कलाकार पुरानी शैली में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके नई शैली को जन्म देते हैं। इसी प्रकार के नवीन प्रयोग मधुबनी चित्रकला में तथा कंठा तथा कालीघाटा के पटचित्रों में दिखाई देते हैं। ये कोलम पेंटिंग है। सी दिस कोलम। टाइटल है फ्लोर पेंटिंग विथ कलसा या कलश कह सकते हैं। स्टाइल कोलन, आर्टिस्ट अननोन और हाउसवाइफ। मीडियम राइस पेंट
rice paste and pigment, period 1992. Site a locality near Tanjavunpura in Tamil Nadu. कह सकते हैं हिंदी में हम कहेंगे तो कोलम, और इसका शीर्षक है कलश से फरसों पर की गई चित्रकारी, और शैली है कोलम। कलाकार जो है घरेलू महिलाएं हो सकती हैं, और माध्यम है चावल की जो पाउडर होता है वो, और रंग, और समय 1992 है, और जो है तमिलनाडु में तंजौपुरा के पास एक बस्ती में ये है। General description: floor decorations is one of the most popular form of art in any culture all over the world. This is also to be found in every part of India in different medium like alpana, rangoli, kolam, sanji, etc. Kolam is the most important part in the cultural and religious festival of South India. During Pongal and other festivals, this decorative artwork is done on the floor in front of the house and on the space before the altar of the deity. Kolam, like other floor decorative art of India, is a symbol of fortune, design and modifies and traditional in nature, and these are both floral and geometric forms. The floor should be wet or moist by sprinkling water on it. The dry coarse ground rice flour is held between the thumb and forefingers. The hand keep on moving while the rice powder is rubbed to release on the floor along the predetermined design. It is very important to continue the drawing as long as possible without any pause. This fluency of line is achieved by the artist only from experience. Younger learn this from their mother and grandmother. ये जो कोलम है इसके बारे में कहा जाता है विश्व की सभी संस्कृतियों में फर्श की जो सजावट करने का बड़ा प्रचलन रहा है या प्रचलित है। ये भारत में भी देश के हर एक भाग में अलग अलग माध्यम से फर्श पर सजावट की जाती है। कहीं पर ये अल्पना कहा जाता है, कहीं रंगोली, कोलम तथा साजी आदि सजावट के लिए विभिन्न माध्यम है। दक्षिण भारत में सांस्कृतिक तथा धार्मिक त्योहारों के अवसर पर कोलम बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। पोंगल तथा अन्य त्योहारों के अवसर पर प्रत्येक घर के सामने पूजा की वेदी के सामने के स्थान पर फर्श पर सजावट का कार्य किया जाता है। फर्श की सजावट के लिए अन्य भारतीय माध्यमों की भांति कोलम को भाग्य और समृद्धि का जो बोलते हैं शुभ माना जाता है, और राइस के पाउडर को छिड़क कर उसे या फर्श को थोड़ा गीला कर या उसे अच्छी तरह से ये किया जाता है, डिजाइन बनाए जाते हैं। मोटे तौर पर चावल को पीस कर उसका पाउडर को अंगूठे और आगे की उंगली के बीच पकड़कर रखते हैं और हाथ घुमाया जाता है, और यह जो चावल का पाउडर है उसको फर्श पर गिराते हैं धीरे धीरे, और फर्श पर जो आकृति बनाई जाती है ये पूर्व निर्धारित होती है। आवश्यकता यह है कि चावल का जो पाउडर है लगातार बिना किसी रुकावट के गिरता रहे तथा जो आकृति फर्श पर बनाई गई है उस पर उभरती जाए। ये जो है लगातार अनुभव से होता है और कलाकृति अच्छे तरीके से बनती है। और जो युवा लड़कियां हैं वो अपनी माँ से और दादी तथा नानी से ये कलाकृति हमेशा सीखती रहती हैं। Beside the symbolic value of this motifs, it express a very interesting meaning of life also.
Rice powder is a readily available. It seems to feed on to show one must take care of other form of life too. This column is being painted by a housewife. It shows the freehand drawing skill of the artist. There are different symbolic forms like pictures, lamps, and coconut trees. All these are integral part of Indian rural life. These designs are basically in geometrical format and with very bright colors like red, orange, blue, येलो एंड पिंक. जैसे मैंने यहाँ पे बताया, जो ये कोलम जो पेंटिंग है या कोलम जो हम रंगोली जिसको कह सकते हैं बनाया जाता है, ये चावल का पाउडर आसानी से मिल जाता है हमारे घरों में. उससे ये भी सिद्ध होता है कि ये कला को जीवन के एक अंश का ध्यान रखना चाहिए. या हम इसे कहेंगे कि चावल का जो पाउडर है वो आसानी से हर जगह पे मिलता है. उससे ये भी सिद्ध होता है कि जो कला है वो जीवन के अंश में ध्यान में रख कर की गई है. कोलम पेंटिंग एक गृहिणी यानी हम जो घर में रहती है महिलाएं वो बनाती है. इससे कलाकार स्वतंत्र रूप से कलाकृति बनाना सीखते हैं जो अपनी इच्छा से बनाते हैं. इस संदर्भ में अलग अलग संकेतित आकार जैसे कि घड़े, लैंप तथा नारियल के पेड़ प्रयोग किए जाते हैं बनाते समय. ये सभी भारतीय ग्रामीण जीवन के अनिवार्य अंग हैं और ये मूल रूप से जो है आकार के होते हैं जिसमें हम अलग अलग रंग भरते हैं, लाल, नारंगी, नीले, पीले तथा गुलाबी. जो कलर ज्यादा चमकीले कलर होते हैं वो हम इसमें प्रयोग करते हैं. सो स्टूडेंट, आई होप ये लेसन ये जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.